Good morning, students. Beta, yesterday we studied about the first stage of statistical study, which is collection of data. When we define statistics in singular sense, it is defined as statistical methods. That is, statistics is the science which deals with collection, organization, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. Right? All these are done to throw some light on any sphere of inquiry. That is to have deep knowledge about any sphere of inquiry. So, which means there are 5 stages of statistics. First being collection of data, so we can collect primary data or we can make use of secondary data. This we have already done, how to collect primary data, what are the different techniques of collecting primary data, what are their respective merits and demerits, and what are the various sources of secondary data. This we have all covered. Now coming to the second stage of statistical study, which is organization of data. So, see students, whenever an investigator collects the the data so collected is a raw data, right? Now, raw data is not capable of, further algebraic treatment. It is not capable of drawing out any conclusion, any meaningful conclusion. Because raw data is unorganized data. Okay, it might contain certain data which is not required. Okay, so it contains mix of data, some of which is required, some of which is not required, right? And they are all unorganized. They are put in an unorganized way. So from such kind of data, that is from the raw data, we cannot draw out any conclusion, any meaningful conclusion. So after the collection is done, we need to proceed with the second stage of statistical study, which is organization of data. What is organization of data? बेटे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को हम समझते हैं उससे पहले हमें सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए. Some of us are in the habit of organizing things, right? You take the case of your study table or your study room or your bedroom. You have a proper place for everything. You have a proper place for keeping your books. You have a proper place for keeping your stationery, your pens, your notebooks, right? So whenever your class is over, you put that books at that allotted place. You have a cupboard in which you keep your clothes. So, do you keep your clothes, mixed clothes as such? No. Firstly, you assort your clothes. You keep separate piles of, tie, belt, shirt, trousers, lowers, t-shirts, right? You organize your cupboard in such a way that you put similar kind of things at one place, right? So, this is organization. अब इसको अगर हम इस टेक्निक को डेटा पे अप्लाई करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा सिंपली मींस arrangement of data, because the data which we have collected so far, it is in raw form. So arrangement of data in such a way that comparison of similar data can be facilitated. जब हम डाटा को इस तरह से अरेंज करते हैं कि हम एक तरह का डाटा कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, एंड फर्दर एनालिसिस कैन बी मेड. जब हम एक तरह का डेटा इकट्ठा डाल देंगे, ओनली देन इट्स पॉसिबल फॉर अस टू मेक फर्दर एनालिसिस. जैसे कोविड की फिगर्स हैं, तो अगर आपको डेटा, मैंने 5 बच्चों को काम पे लगाया, 5 ने आके मुझे डेटा दे दिया, ठीक है, किसी ने लास्ट ईयर का डाटा कलेक्ट किया, किसी ने इस ईयर का डाटा कलेक्ट किया, किसी ने किसी स्टेट का डाटा कलेक्ट किया. अब अगर मैं इसको मिक्सचर ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट में डाल दूंगी, तो इन दैट केस नो कंपेयर, इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ आउट एनी कंक्लूजन.
So if we keep the data, mixed data in mixed way, और उसमें से सिमिलर डाटा मैंने एक तरफ नहीं रखा, सारा मिक्सचर सा रॉ डाटा ऐसे ही मैंने पाइल अप कर दिया है, फिगर्स अलग अलग लिख दी, ये जलंधर का डाटा है, ये लुधियाना का 2020 का है, ये जलंधर का 2021 का है. So in this case comparison will not be facilitated, and secondly analysis can also not be made. So whenever we, so this is अगर हमें कंपैरिजन फैसिलिटेट करना है, अगर हमें एनालिसिस फैसिलिटेट करना है, तो हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. तो ऑर्गेनाइजेशन सिंपली मींस अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ वे दैट कंपैरिजन ऑफ सिमिलर डाटा कैन बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस कैन बी मेड. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू ऑर्गेनाइज द डाटा. So to organize the data, one way is to classify the data. ठीक है. So what is the process of classification? Classification का मतलब क्या है? थोड़ा सा नाम से ही आपको पता चल रहा है. जब हम डेटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, उसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन. ठीक है. So a process by which data is divided into or distributed into different classes according to their similarity or diversity. Now different classes में किस तरह से डाल सकते हैं हम, उनकी similarity या उनकी diversity के according. Simply speaking, I will give you one example कि आपने 10th में आपके 4 sections थे A, B, C, D. उसके बाद आपने अलग अलग subjects opt कर लिए, अलग अलग streams choose कर ली. तो हमने according to your stream आपको एक section allot कर दिया. जिन्होंने मेडिकल रखा उनको हमने एक सेक्शन में डाल दिया, लेट्स से ए में, नॉन मेडिकल बी में, कॉमर्स सी में. ठीक है. सो व्हाट वी हैव डन, एक सेक्शन में जो स्टूडेंट्स बैठेंगे वो सिमिलर एक जैसे होंगे. ठीक है. अगर ए सेक्शन में है वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, बी में सारे नॉन मेडिकल हैं, सी में सारे कॉमर्स है. सो सिमिलर काइंड ऑफ डाटा इज देयर, एंड मोर ओवर डाइवर्सिटी amongst classes is there. यानी A और B दोनों में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. A में सिमिलर है लेकिन A और B में अलग अलग है. So this is classification बेटे. It's a process by which data is divided into different classes, right? कोई भी अगर क्लासिफिकेशन है तो वो किसका प्रोसेस है? डिवाइडिंग द डाटा इनटू डिफरेंट क्लासेस. कैसे डिवाइड किया? अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी और डाइवर्सिटी. ऑल राइट. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय क्लासिफिकेशन. एंड क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी. व्हाई? बिकॉज वी सीक टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन. हमारा रॉ डाटा को क्लासेस में डिवाइड करने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. First, to make the data brief and simple. We have a lot of data at our disposal. Raw data जो है वो it's a plethora of figures. It's a lump of figures. So एकदम से हम इतनी figures देख के घबरा जाएंगे. अगर मैं आपको भी एक टास्क दे दूं, मैंने कहा ये लो, ये आपके स्कूल के बच्चों का डाटा है, तो इसमें उनकी हाइट लिखी हुई है, सारे 2000 स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में, तो 2000 स्टूडेंट्स की मैंने आपको हाइट का डाटा दे दिया. आपको 5-7 पेजेस का बेटे मैंने जब डाटा दे दिया तो आप उसको देख के घबरा जाओगे, राइट? सो यू विल नॉट बी एबल टू absorb it, or you won't be able to see what to do about it. So अगर हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं, डाटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, it will make the data brief and simple to understand. ठीक है. वो थोड़ा सा simplified हो जाएगा और brief form में आ जाएगा. ठीक है. ये कैसे होगा? ये जब हम classification further करेंगे, we will be learning how to classify the data. So these things will be more clear at that time. Next bit, to enhance the utility of data. Again, I am telling you, raw data is just like a lump of clay. आपको आपके घर में एक मिट्टी पड़ी है, ठीक है, इट इज ऑफ काइंड ऑफ नो यूज टू यू, लेकिन वही मिट्टी का पॉटर
जब एक पॉट बना देता है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है. सिमिलरली बेटे रॉ डाटा इज जस्ट लाइक अ लंप ऑफ क्ले, बट व्हेनेवर यू क्लासिफाई द डाटा इट एनहांस द यूटिलिटी ऑफ डाटा, उसकी यूजफुलनेस बढ़ जाती है. Next objective of doing classification is to facilitate comparison. ठीक है, it's not easy to compare the data, to make the comparison easier we classify the data. क्योंकि raw data को compare करना, अगर मैं आपके एक लिस्ट मैंने आपके सेक्शन की बना ली इकोनॉमिक्स के मार्क्स की, और एक और सेक्शन है दूसरी लिस्ट उनकी बना ली, ठीक है, तो ऐसा रॉ डाटा को कंपेयर करना कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स, हो सकता है रोल नंबर 1 आपकी क्लास का जो है उसके 90 मार्क्स आए, जो दूसरे सेक्शन का रोल नंबर 1 है उसके 45 मार्क्स आए, आपका जो सेकंड रोल नंबर है उसके 90 मार्क्स आए, उनका जो सेकंड रोल नंबर है वो 40 मार्क्स लेके जा रहा है. सो यू नो इस तरह से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं जब रॉ डाटा हमारे पास होता है. लेकिन अगर हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं, हम दोनों सेक्शंस का डाटा इस तरह से बना देते हैं कि ए ये बी दो क्लासेस हैं, ठीक है, दो सेक्शंस हैं, तो 0 to 50 इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए ए सेक्शन में, और बी सेक्शन में इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, ठीक है. 50 to 70 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए ए सेक्शन में, 50 to 70 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 70 एंड अबव 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 70 एंड अबव 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए. सो जब हम इस तरह से बेटे डिवाइड कर देते हैं तो कंपैरिजन करना इजियर हो जाता है. हम देख सकते हैं दोनों में से कौन से सेक्शन की परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बढ़िया है, ठीक है. नेक्स्ट इज टू मेक द डाटा मोर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव. डाटा इस तरह से ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, मतलब आपको अट्रैक्ट करता है, नहीं तो आप डाटा देख के घबरा जाओगे, ठीक है, आपको घबराहट होएगी कि ये इससे हम कैसे कंक्लूजन ड्रॉ करें. बट व्हेनेवर वी पुट द डाटा इन यू नो कंडेंस्ड फॉर्म, ये कंडेंस्ड फॉर्म में डाटा को डाल देता है क्लासिफिकेशन, तो उससे वो अट्रैक्टिव एज वेल एज इफेक्टिव हो जाता है. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू फैसिलिटेट एनालिसिस. हमें डाटा से जब मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ करनी है, उसके लिए हमें डाटा का एनालिसिस करना पड़ता है. एनालिसिस की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन. ये सारी टेक्निक्स तभी अप्लाई होंगी अगर डाटा हमारे पास क्लासिफाइड फॉर्म में अवेलेबल है. रॉ डाटा के ऊपर एनालिसिस की टेक्निक्स अप्लाई नहीं होती है या मुश्किल होती है उनको अप्लाई करना, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन. So next topic is basis of classification. We can classify our data, our statistical information on different bases. So on that criteria there are different types of classification. First one, geographical, also called as spatial classification. Then there is chronological classification, qualitative classification, and quantitative classification, right. Now firstly, geographical or spatial classification. Bete any classification which is based on geographical differences, or you can say on the basis of places. When the data is classified on the basis of places, it is known as geographical classification, ठीक है. जैसे नंबर ऑफ कोविड केसेस या कोविड डेथ्स, लेट्स से ऑन May 19, 2021, ठीक है, पंजाब में इतनी डेथ्स हुई, हरियाणा, महाराष्ट्र, ठीक है. सो ये जो डाटा आपको दिया हुआ है बेटे, ये हमने कौन से बेसिस पर क्लासिफाई किया है? ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डिफरेंस.
So this type of classification is known as geographical or spatial classification. Is it clear? Next is बेटे chronological classification. आपने ये वर्ड हिस्ट्री में भी सुना होगा, chronological events. Can anyone tell me the meaning of chronology? बेटे when the data is classified on the basis of time, ठीक है, it is known as chronological classification. Chronology means on the basis of time. So let's say we have the data of number of deaths due to COVID in Punjab, January, February, March, April, ठीक है. So ये months हैं, इधर number of deaths हैं. Let's say 10, 12, 20, 50. ठीक है. Here we have classified the data on the basis of time. पंजाब में different time period में कितनी deaths हुई. This is chronological classification. और भी कोई जितनी मर्जी examples ले लो बेटे. इंडिया की population 2001 में, 2002 में, 2003 में, right? So this is chronological classification. Next होती है बेटे qualitative classification. When the classification is done on the basis of quality और attributes of data, quality को attribute भी कह देते हैं. On the basis of quality or attribute of data, it is known as qualitative classification. ठीक है. जैसे आपने on the basis of gender divide कर दिया लोगों में, इतने मेल इतने फीमेल, ठीक है. रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, इतने हिंदू, इतने मुस्लिम, इतने सिख. इंटेलिजेंस के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया, इतने इंटेलिजेंट, इतने अनइंटेलिजेंट, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. फर्दर ये दो तरह की होती है बेटे, सिंपल क्लासिफिकेशन, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. Simple classification is that in which the classification is done or data is classified on the basis of one quality. एक quality के basis पर, या वो quality present है या वो quality absent है. जैसे educated, uneducated, healthy, unhealthy, male, female, ठीक है. Either one quality is present or it is absent. इस तरह से जब हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को, it is known as simple classification. Then comes बेटे manifold classification. Manifold classification means when we classify the data on the basis of different categories, different attributes. बेटे घर ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में क्या डाउट है, जब हम किसी भी जगह के बेसिस पर डिवाइड कर देते हैं. जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम है, लेट अस से यूएस की इतनी, यूएस की पर कैपिटा इनकम, इंडिया की पर कैपिटा इनकम, चाइना की पर कैपिटा इनकम, ठीक है. इस तरह से जब हम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, लोकेशन डिवाइड करते हैं, उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. ओके, आई वाज एक्सप्लेनिंग मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. सो जब हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, उसको कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. जैसे लेट्स से इंडिया की पॉपुलेशन पहले हमने डिवाइड किया, कितने मेल कितने फीमेल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर.
फिर हमने इनको डिवाइड किया कि ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी. सो इतने लिटरेट, इतने इलिटरेट. सिमिलरली फीमेल को भी डिवाइड करेंगे, लिटरेट, इलिटरेट. देन लिटरेट में से कितने एम्प्लॉयड, कितने अनएम्प्लॉयड. सिमिलरली इधर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड. ठीक है, यहाँ पर हमने एक ये जेंडर की एट्रीब्यूट लिया, दूसरा लिटरेसी का, तीसरा एम्प्लॉयमेंट का. आगे चाहो और भी कर सकते हो. अभी तक ये 3 फोल्ड हो गई. ठीक है, 3 फोल्ड, मैनीफोल्ड एक ही बात है. मैनीफोल्ड मींस मोर देन वन एट्रीब्यूट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन. ठीक है, सो दिस इज मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. आप चाहो तो एक और ले लो, रूरल अर्बन, रूरल अर्बन. ठीक है, सो